Assalamu alaikum students. Today we will solve one more case. As we all know, for diagnosis, first we will go through history, then examination, and then investigation. History of patient is 22-year-old man presented with malaise and anorexia for 1 week. He vomited on one occasion with no blood. He has felt feverish but has not taken temperature. 2 हफ्तों से itching pains हैं knees में, elbow और wrist में without any obvious swelling of the joint, and he has not noticed any change in his urine or bowels. 5 years ago he has glandular fever. Confirms serologically. Glandular fever बेसिकली अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन है जो मोस्टली अफेक्ट करता है यंग अडल्ट्स को, और इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं फीवर, सोर थ्रोट और एक्सट्रीम टायर्डनेस या फिर फटीग. और 25 सिगरेट्स पर डे कंजप्शन है पेशेंट की. 20 to 40 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल पर वीक कंजप्शन है. मैरिजुआना बी जो है वो 2 साल से यूज़ कर रहा है, और वेरियस टैबलेट्स के मिक्सचर्स जो हैं वो क्लब में यूज़ करता है विदाउट नोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दोज mixtures. He agreed for intravenous drug use. He claims he have had an HIV test that was negative 6 months earlier. He has not traveled abroad in the last 2 years. He is unemployed and lives in flat with 3 other people. There is no relevant family history. Now let's move towards the examination. Temperature is 38.6 centigrade. Looks unwell. He maybe has a little jaundice, little tender in the right upper quadrant of the abdomen, and जो उसको knees और joints वगैरह में पेन थे, on examination no abnormality is found over there. Now moving towards the investigation. Hemoglobin is normal. Mean corpuscular volume is also normal. White cell count is slightly increased. Platelet is normal. Prothrombin time is slightly increased. Sodium, potassium and urea levels are in normal range. However, bilirubin is high. Alkaline phosphate and alanine aminotransferase, which are liver enzyme, they are very above than their normal range. His fasting glucose is also normal. These two enzymes, which are liver enzymes, are indicating that there may be some possibility of liver issue. Now let's move towards the question. What questions arises? The first question is, what is your interpretation of the finding? What is the likely diagnosis and what treatment is required? Biochemical results show abnormal liver function test with a predominant change in transaminase, indicating a hepatocellular rather than an obstructive problem in the liver. This might caused by hepatitis A, B or C, and the raised white blood cell count is compatible with acute hepatitis. And homosexuality and intravenous drug abuse are risk factors for hepatitis B and C. As we have read in history, patient agreed on taking intravenous drug use, so it may be the chances that patient might have hepatitis B. As the drug ingestion history is unclear, there is a possibility of a drug induced hepatitis as well. Joint symptoms बताएं पेशेंट ने. जॉइंट सिम्टम्स बताए हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के अंदर जो है मोर कॉमन काउज है. सो इसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए विल गो थ्रू सीरोलॉजिकल टेस्ट टू सी वेदर देयर आर इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ इंडिकेटिंग एक्यूट इन्फेक्शन. तो इससे जो है डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी. और जो पेशेंट ने HIV टेस्ट का बताया जो 6 months अर्लियर किया था, तो ये जो है कंडीशन से पता चलता है और इसके जो सिम्टम्स है उससे कंफर्म होता है कि पेशेंट को HIV नहीं है, बल्कि सीरोलॉजिकल टेस्ट से फर्दर कंफर्मेशन होगी कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है या नहीं. आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच कंफर्म्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन,
सो अबाउट 30% ऑफ केसेस डेवलप जान्डिस। जब हम लोगों ने एग्जामिनेशन किया था जिसके अंदर ये बताया था ही मे बी हैज़ अ लिटिल जॉन्डिस, सो और जो है बिलिरुबिन भी का लेवल भी हाई आ रहा था, तो इट्स इंडिकेट्स दैट पेशेंट के पास को जॉन्डिस भी है और सीरोलॉजिकल टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए हैं, और तो इट कंफर्म्स दैट पेशेंट is suffering from hepatitis B infection. Second question was what is the likely diagnosis. So after the serological test which confirmed that the man has acute hepatitis B infection, or about 30% of cases develop jaundice. अच्छा, ट्रीटमेंट जो है इसके सपोर्टिव होता है एक्यूट फेस में। एंटीवायरल ड्रग्स हम नहीं देते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो स्लाइटली रेस था, लेकिन डज नॉट इंडिकेट टूवर्ड्स द सीवियर डिजीज़। और जो है मेजर्स हम यही लेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट जो है उसको मॉनिटर करेंगे कि एंजाइम लेवल जो है वो प्रोग्रेस करे, नॉर्मल की तरफ आए, और पेशेंट को की काउंसलिंग करनी है कि अल्कोहल और सिगरेट का कंजप्शन नहीं करना है, और जो वो ड्रग्स यूज़ करते हैं इंट्रावीनस उसको अवॉइड करना है, और जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करना है, ताकि लिवर फंक्शन टेस्ट के जो वो हैं वो लिवर फंक्शन टेस्ट के जो एबनॉर्मल रिजल्ट्स आए हैं वो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते हैं। दूसरा ये कि जो क्योंकि हमने अभी हिस्ट्री में पढ़ा था कि वो फर्दर फ्लैटमेट्स के साथ रहते हैं, तो क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आउटसाइड द बॉडी कुछ देर के लिए जो है एक्टिव रहता है, तो ही शुड एडवाइज हिज फ्लैटमेट्स नॉट टू शेयर रेजर्स एंड टूथ ब्रशेज विथ हिम, दे शुड कंसीडर बीइंग वैक्सीनेटेड, क्योंकि 5% ऑफ अडल्ट्स जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी के होते हैं वो 5% पेशेंट्स को जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, तो इट्स नेसेसरी टू टेक सेफ्टी मेजर्स, और पेशेंट की हम इस तरीके से काउंसलिंग करेंगे। वी हैव फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस के इंटरप्रिटेशंस जो हैं हमने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फाइंड आउट किया कि क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद जो डायग्नोसिस जो फर्दर कंफर्म किया हमने सीरोलॉजिकल टेस्ट से कंफर्म किया, जिससे इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट से एंटीबॉडीज़ से इंडिकेट हुआ कि पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस है। और जब ट्रीटमेंट की बात आई, क्योंकि पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन था, तो उसके लिए हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं एक्यूट फेस में, और एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं इंडिकेट नहीं की जाती हैं, बल्कि उनको जो है उनको एडवाइस किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है कि किस तरीके से वो अपने जैसे अल्कोहल और सिगरेट का वो यूज़ करते थे उसको कम करना है, और जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनको उनका यूजेज कम करना है अंटिल जितने भी लिवर एंजाइम्स हैं वो नॉर्मल रेंज में ना आ जाएं। और जो उनके फ्लैटमेट्स हैं उनको भी ये एडवाइस करनी है कि वो उनके साथ शेयर रेज़र और टूथब्रशेस को शेयर ना करें।